Hello everyone. My name is Harish and the topic for today's session is a truly beautiful mind. It's a topic, it's a chapter from book Behave of class 9th NCERT book. So let's read about the chapter in a very quick review. Who do you think of when you hear the word genius? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? So what the word genius? Genius like एक महान एक अद्भुत दिमाग. Like a genius is something which you cannot record in words. It is something very extraordinary. जो बहुत ही कमाल का दिमाग रखते हैं, कमाल की सोच रखते हैं, कमाल का उनका जीवन होता है. So that is a person is called genius. Genius is like it's completely related to your intelligence, your knowledge, how actually you explore it and how actually it is helpful to each and every individual, including yourself too. Who is a genius and what qualities do you think a genius has? और आपके हिसाब से क्या जीनियस होता है और क्या परिभाषा होती है एक जीनियस की? So that exactly chapter means. We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. आज हम उस इंसान के बारे में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे लाइक जिस इंसान ने पूरे विश्व में एक स्टॉर्म की तरह एक रेवोल्यूशन टाइप में लेके आए. लाइक ही एक्चुअली विद हिज थ्योरीज एंड इन्वेंशन ही एक्चुअली चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड 100 years ago. आज से कम 100 साल पहले की बात है. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. Like you're talking about a person जो सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने ऐसी थ्योरीज और ऐसे एक्सपेरिमेंट और ऐसे इन्वेंशन लोगों को दिए like which was extraordinary. Like the first was the about light, second was the motion of particle, third was electrodynamics of moving bodies and energy. These all are some science terms, scientific terms you can understand by reading more about in the science subject. So these were the invention and the discoveries and the theories and his work over science. His work took up only a few pages in scientific journals, but changed forever our understanding of space, time and entire cosmos. Like it would have taken only a few pages in scientific journal. मतलब कुछ ही ज़्यादा किताब में उन्होंने ज़्यादा चीज़ें नहीं घेरी हैं. लाइक मगर उन्होंने जितना उन्होंने किया है, ही इज़ नॉट ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस इन जनरल्स, बट उनके जो काम थे दे वर लाइक इट वाज लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन साइंस जोन. तो उनको कंपेयर नहीं कर सकते हम किसी भी इंसान से. एंड ट्रांसफर द नेम आइंस्टाइन इनटू सिनोनिम ऑफ जीनियस. और उनके इन्हीं कामों की वजह से, इन्हीं उपलब्धियों की वजह से, वट एवर ही हैज़ गेन्ड एंड डिस्कवर्ड इन हिज लाइफ, उन कामों से उनका नाम आइंस्टीन से जीनियस में तब्दील हो गया. लाइक ही वॉज नॉट नोन बाय हिज ओन नेम एल्बर्ट आइंस्टाइन, but he was known by name genius. So as I told, 15 years after his death, Albert Einstein genius still reigns. Like so, very quickly I should tell you, we are talking about a genius, as we all know, is Albert Einstein. So here the chapter, a truly beautiful mind, is a mind of Albert Einstein. We'll talk about Albert Einstein in the chapter, whose genius still reigns. That like उनका जो काम है वो आज भी हम पढ़ रहे हैं, वो आज भी यूजेस में है. लाइक we are working according to the theory given by Albert Einstein in his life. So जो उन्होंने काम तब किया था वो आज भी बहुत यूजफुल है और आज भी हम उसे यूजेस में लेके आ रहे हैं. So let's start with the chapter. Beginning with the first paragraph. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. तो 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी उल्म में, जर्मन के एक छोटे से शहर
में एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। एंड उनके पैदा होते ही कोई अंदाज़ा नहीं लगा दिया था कि ये बंदा पैदा हुआ, ये तो ग्रेट पैदा हुआ, ये तो भगवान पैदा हुआ। इट वॉज नथिंग लाइक दैट। ही एक्चुअली वर्कड थ्रू आउट हिज लाइफ टू क्रिएट दैट जीनियस inside him. Okay, so on the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her his head seemed much too large. तो उसके पैदा होते हुए मदर, उनकी मम्मी को ये लगा था कि ये अजीब ही चीज़ है। फ्रीक, there is a meaning like a word used disapproving to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. मतलब वो फ्रीक इसलिए था बिकॉज ही वॉज नॉट नॉर्मल लाइक अदर चिल्ड्रंस, ही वॉज फेल्ट लाइक एन एबनॉर्मल ह्यूमन बीइंग विच हु टुक बर्थ। बिकॉज उनको उसका जो सर था, लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सर था, वो जो पैदा हुए थे वो बहुत बड़ा था साइज में। तो हर मदर ऑल्सो यूज टू थिंक दैट ही इज अ फ्रीक। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। तो 2.5 साल की उम्र पे भी आइंस्टाइन ने बोलना स्टार्ट नहीं किया था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, जब उन्होंने बोलना सीखा था, तो जो भी बोलते थे वो 2 बार बोलते थे। लाइक वट एवर, लाइक माई नेम हरीश, हरीश, लाइक आई एम सेइंग डू इट, ठीक है, लाइक वट एवर, लाइक आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, मतलब एक चीज़ को 2 बार दोहराना, समझ रहे। तो ये चीज़ थी, जब वो 2.5 साल के होते वो जो भी बोलते थे वो 2 बार दोहराते थे एक वर्ड को। इस तरीके की उनका बोलने का तरीका था। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स? Actually, he was quite abnormal and his friends actually was not interested to play with him। और उसका एक स्पेशली नाम रख दिया था ब्रदर बोरिंग। तो आइंस्टाइन को ज़्यादा दोस्त नहीं मिले थे और वो ज़्यादातर टाइम बचपन में भी अकेले ही बिताया करते थे। यूज टू प्ले विद हिमसेल्फ एंड ही स्पेशली यूज टू प्ले विद मैकेनिकल टॉयज। जो मैकेनिकल टॉयज होते थे ना, जो लाइक समथिंग इज़ रिलेटेड विद फिक्शंस, ठीक है, वो चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्चुअली एक्साइट होते थे वो, उन्हें बड़ा मज़ा आता था ऐसे काम करने में। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, तो जो माजा थी वो उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर थी, उनसे छोटी थी। ही सेड टू हैव सेड, फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स? तो कहता है ठीक है, ये अच्छी है, मगर इसके टायर कहाँ हैं? लाइक अजीबो गरीब बातें करना। इट वॉज लाइक फन व्हेन ही यूज्ड टू स्पीक ऑल दिस। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. So this headmaster was also very negative towards him. मतलब हमेशा कोई appreciation नहीं, कोई motivation नहीं, but he used to speak negative, he used to talk negative about Einstein। वो हमेशा उल्टा ही बोलते थे। वो कहते थे कि चाहे ये कोई भी नौकरी कर ले, ये किसी भी प्रोफेशन में जाए, बट आई एम श्योर कि ये कोई सक्सेस, इसको कोई उम्मीद, मतलब क्या कहते हैं, इसको कोई ऊंचाई है, या फिर ही वोंट फाइंड एनी सक्सेस इन वट एवर ही विल डू। ये कुछ भी कर ले, इसको कोई सक्सेस नहीं मिलने वाला है। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. Like he was a gifted amateur violin बहुत अच्छा बजा लेते थे। तो एक्चुअली वो किसी में सक्सेस करे ना करे, मगर आइंस्टाइन ने क्या किया था, वायलिन प्ले करना स्टार्ट कर दिया था जब वो सिर्फ महज 6 साल के थे। और इसलिए क्योंकि उनकी मम्मी ये चाहती थी कि वो वायलिन सीखे, और उन्होंने उम्र भर ये स्किल मेंटेन भी करके रखा। उन्होंने अगर सीखा तो इट डजंट मीन कि वो बाद में भूल गए, या फिर एक्चुअली बस उसी टाइम के लिए उनको थोड़ा इंटरेस्ट था इसलिए उन्होंने सीखा और फिर उसे छोड़ दिया। बट ही मेंटेन दैट स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। उन्होंने ज़िंदगी भर इस कला को अपने साथ रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school regimentation and often clashed with his teacher. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good.
So actually at the age of 15 his family moved to a city Munich and उनका वहाँ एडमिशन हो गया. And he used to score good marks in each and every subject. He is very intelligent in though. आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल. आइंस्टाइन को जो वहाँ के तौर तरीके थे और जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, कुछ लाइक बहुत से होते हैं, कुछ रोकने वाले रूल्स होते हैं. लाइक अब अगर हम बच्चों को रोकते हैं तो उसे पसंद नहीं आता है, बट ही एक्चुअली लाइक्स टू एक्सप्लोर हिमसेल्फ. वो चाहता है कि मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ. तो ही वॉज लाइक दैट. ही डिडंट लाइक एनी रेजिमेंटेशन और ठीक है क्लैश विद हिज टीचर. यूज्ड टू क्लैश मतलब उसकी हमेशा एक बहस सी होती रहती थी उसके टीचर्स की. 15 ईयर्स ऑफ एज आइंस्टाइन को इतना अजीब सा लगा उस स्कूल में रह के, उस स्कूल में पढ़ना, कि उसने उस स्कूल को छोड़ना ही बेहतर समझा. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट हैड मूव्ड टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव. अब उसके बाद क्या हुआ कि एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसको छोड़ दिया था, ठीक है, और वो मिलन, देयर इज़ डिफरेंट सिटी मिलन, वो वहाँ चले गए थे. और अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने उनके रिलेटिव्स के, उनके कुछ क्लोज रिश्तेदार, रिलेटिव्स मतलब वहाँ पर उनको ड्रॉप कर दिया गया. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी which was more liberal than Munich. Now finally when he was about to understand things and he was quite mature, तो उन्होंने like it was time of his graduation time kind of, तो उन्हें अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए जर्मन, जहाँ पर जर्मन बोली जाती है लाइक स्विट्ज़रलैंड में, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर एडमिशन ले लिया. एंड जो जगह स्विट्ज़रलैंड थी वो बहुत ज़्यादा बेटर थी इन स्टडीज़, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड स्टडीज़. वो म्यूनिक से लाख गुना बेटर जगह थी. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. As we all know, his discoveries were almost related with the physics and maths. So his favorite subjects were physics and mathematics. And after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. तो क्या हुआ, उन्होंने जब स्कूल फिनिश किया, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी. स्कूलिंग कंप्लीट करने के लिए बाद स्विट्ज़रलैंड से उन्होंने मूव किया ज्यूरिक, जहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की. बट द साइंस वाज़न्ट द ओनली थिंग दैट अपील्ड द डैशिंग बॉय. सिर्फ साइंस ही इकलौती ऐसी चीज़ नहीं थी जो उनको अट्रैक्ट करती थी, एक्साइट करती थी, ठीक है. ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो उस वॉलरस मुस्टैच वाले इंसान को बहुत पसंद थी. यहाँ पर वॉलरस मुस्टैच एज यू हैव सीन लाइक छोटे छोटे धागे धागे टाइप में छोटी छोटी मूछें बाहर निकल रही होती है. वॉलरस ए दैज अ लाइक इट्स अ वाटर एनिमल. उन वॉलरस यू कैन वॉच इट दैट उसकी जो मुस्टैच होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और विस्कस टाइप में होती है. तो उनको वॉलरस के मुस्टैच से कंपेयर इसलिए किया गया है क्योंकि they both have the same type of mustaches. So as you can also see in the images, Albert Einstein in 1900 at the age of 21 and 1955 में Albert Einstein कैसे दिखते थे. He also felt a special interest in a fellow student Mileva Marek. तो उनको एक अपनी फीमेल स्टूडेंट जो उनके साथ में पढ़ा करती थी उनमें बहुत इंटरेस्ट था, जिनका नाम माइलेवा मैरिक थी. whom he found to be a clever creature. उन्हें लगता था कि ये भी बड़ी शार्प क्रिएचर है, बड़ी इंटेलिजेंट क्रिएचर है. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degree. वो स्विट्ज़रलैंड ज़ूरिक यूनिवर्सिटी इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो उन यूनिवर्सिटीज़ में थी जिसमें जो वुमेन थी, औरतों का दाखिला बहुत ही आराम से हो जाता था. एंड द वुमेन ऑफ that country was promoted to study. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university, those with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. So actually those people like जो यूरोप में women used to get degrees there, तो वो उन्होंने इसलिए ज्वाइन किया. And Einstein saw her ally अंगेज द फिलिस्टाइंस. लाइक जितने भी लोग उनके पास साथ रहते थे वो थोड़े अंगेज टाइप के रहते थे, वो उनसे बातें अच्छे से नहीं करते थे. और जो माइलेवा थी उनको उसमें एलाई एक साथी दिखा. एलाई का मतलब होता है देयर इज अ लाइक फ्रेंड और अ
कंपेनियन यू मस्ट से। तो उनमें उनको थोड़ा उनके साथ बिताना, उनको जो समय था उनको बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि बाकी के लोगों से तो उनके वैसे ही ऑट से, लाइक ही कैनॉट मैच विद दोज पीपल। तो ही एक्चुअली स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद मालेवा एंड दे एक्चुअली फॉल इन लव। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। तो दे यूज्ड टू राइट लेटर टू ईच अदर, वो एक दूसरे को खत के थ्रू अपने इमोशन और अफेक्शन को जाहिर करते थे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relatively to a victorious conclusion। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि लाइक कितना बेटर और कितना अच्छा होगा जब हम दोनों अपने मतलब अपने दोनों के काम मिला के अच्छे से इस चीज़ पे फोकस करके काम करें, एंड व्हेन वी विल रीच एट अ विक्टोरियस कंक्लूजन, मतलब हम फाइनली फिर हम एक विजेता कहलाएंगे, इस पे हम लोग मतलब इस पे वर्क कर पाएंगे और वी विल हैव अ विक्ट्री। ठीक है। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। तो इन 1900 में जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 21 साल के थे, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, मगर वो एक अनएम्प्लॉयड पर्सन थे, मतलब उन पर कोई नौकरी नहीं थी फिलहाल। He worked as a teaching assistant, gave private lesson and finally secured a job in 1902. तो he actually started what? He worked as a teaching assistant, वो लोगों के टीचर्स के अंडर काम करते थे ताकि उनको नॉलेज भी मिले और वो थोड़ा पढ़ा भी पाए। Gave private lessons, private tuitions lessons भी दिया करते थे, and finally secured a job in 1902 as a technical expert इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। एंड फाइनली 1902 में उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब एक पेटेंट ऑफिस में बर्न में मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work Bureau of Theoretical Sciences। तो एक्चुअली जहाँ पर हर एक इंसान जुड़ के मेहनत करके मिलके काम कर रहा था, वहाँ पर आइंस्टाइन खुद अपने ही कामों में अकेले बिजी रहा करते थे। लाइक ही वॉज एक्चुअली स्टेइंग अलोन एंड डेवलपिंग हिज स्किल्स एंड हिज आइडियाज़ इन सीक्रेट। अकेले में वो अपने स्किल्स, अपने हुनर को और अपनी कला का मतलब जो भी उनकी आर्ट थी वो उस पर वर्क करते रहते थे चुपचाप। एंड लोग उन मतलब लोग कहते थे लाइक द टेबल ऑफ ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स, एज वी नो दैट ही वॉज रिलेटेड टू फिजिक्स। तो उनकी डेस्क भी उसी नाम से जाना जाया करती थी। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। So इन पेपर्स 1905 में आइंस्टाइन की जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसके बारे में न्यूज़पेपर में खबर आ रही। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time. If they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to other. From this followed the world's most formula which describes the relationship between mass and energy। तो उनका जो mass on energy like E is equal to mc squares का जो फॉर्मूला था वो लोगों के सामने आया। लाइक उन्होंने समझाया कि अगर दो घड़ी एक्यूरेटली करेक्टली टाइम पे भी चल रही हैं तब भी वो एग्जैक्टली सेम टाइम नहीं शो कराएंगी। दिस इज द वे इन डीप सेंस इट्स गिवन इन फिजिक्स हाउ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्क्स। तो उन्होंने ये थ्योरी दी और जिसके बारे में न्यूज़पेपर में भी काफ़ी चर्चा हुई। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। मतलब जब वो अपने क्या कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की कर रहे थे तो उनको जो अपनी पब्लिक है ना प्राइवेट जो लाइफ थी, जो उनकी खुद की लाइफ थी, वो उसको अपना टाइम नहीं दे पा रहे थे। लाइक इन सम टाइम्स व्हेन अ पर्सन इज टू बिजी इन क्रिएटिंग और डेवलपिंग समथिंग और डिस्कवरिंग समथिंग, इट हैपन्स कि ही माइट फॉरगेट हिज लाइफ, हिज ओन लाइफ और हिज फैमिली फॉर अ टाइम। तो वो थोड़े सा इग्नोरेंस में चला जाता है और वही चीज़ कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। लाइक तो क्या हो गया था, इट वॉज द हिज लाइफ एक्चुअली अनरेवलिंग, ही स्टार्टेड टू फॉल, मतलब धीरे धीरे वो मतलब उसमें घटाव आ रहा था। इट वॉज गेटिंग वेरी अनइंटरेस्टिंग डे बाई डे। एल्बर्ट हैड वॉन्टेड टू मैरी मालेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी।
एल्बर्ट का मन था कि वो जैसे ही पढ़ाई ख़त्म करेंगे वो सबसे पहले मालवा से शादी करेंगे, बट इज़ मदर वॉज अगेंस्ट इट, मगर उनकी माँ इस बात से राज़ी नहीं थी. शी थॉट माइलवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, माइलवा जो कि मेरे बेटे से 3 साल बड़ी है, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो कुछ ज़्यादा ही में, मतलब वो एज डिफरेंस काफ़ी था. वो नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की किसी 3 साल बड़ी लड़की से शादी हो. तो हर मदर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन माइलवा एंड शी डज नॉट वॉन्ट के आइंस्टाइन शुड गेट मैरिड टू हर. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय माइलवाज इंटेलिजेंस, और उनको वो जो उनकी इंटेलिजेंस थी स्पेसिफिक, वो भी कुछ खासा पसंद नहीं आती थी. शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, कहता वो भी तुम्हारी तरह किताब की तरह है, लाइक शांत एंड ओनली नॉलेज इनसाइड इट. मैं एंड शी स्ट्रिक्टली सेड आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, इसीलिए आइंस्टाइन आपकी शादी नहीं हो सकती. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903. इतना मना करने के बावजूद भी आइंस्टाइन ने 1903 में माइलवा से शादी कर ली एंड हैड 2 sons, और उन पे 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज faltered, मगर अगले 2 साल बाद ये मैरिज ज़्यादा नहीं चल पाई. एंड एक्चुअली माइलवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी वाइफ, हाउस वाइफ. तो माइलवा को क्या पसंद नहीं आ रहा था? माइलवा को ये पसंद नहीं आ रहा था कि एक्चुअली शी वॉज इंटेलिजेंट, और जो उनका इंटेलेक्चुअल एम्बिशन था, जो उन्होंने जो अपनी पढ़ाई से, हम हमेशा कुछ फोकस करके कुछ गोल सेट करते हैं कि हाँ हमें अपनी लाइफ में पढ़ लिख के ये करना है, और जब हम वो नहीं कर पाते तो हमें बड़ी ही हम नाखुश हो जाते हैं, वी आर नॉट हैप्पी. तो सेम उसके साथ था, वो एक हाउस वाइफ में कन्वर्ट हो गई थी, प्रोफेशनल बिल्कुल नहीं थी, जो उनको पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों को अलग होना पड़ा एंड डाइवोर्स लेना पड़ा. आफ्टर ईयर्स अ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919. तो फाइनली ये सब चलता रहा, इन सारी दिक्कतों और सॉल्यूशंस के बावजूद एक फाइनल सॉल्यूशन कंक्लूजन ये निकला कि उन्होंने 1919 में डाइवोर्स ले लिया एक दूसरे से. आइंस्टाइन मैरिड टू हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एल्सा जो उनकी कज़न थी उनसे शादी कर ली. आइंस्टाइन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम. नाउ जैसे ही उन्होंने शादी की, ये नया चैप्टर एकदम से एक अजीब सा कोइंसिडेंस हुआ, एंड जो वर्ल्ड फेम था माइक, पूरे विश्व में आइंस्टाइन को लोगों ने जानना शुरू कर दिया, पहचानना शुरू कर दिया. इन 1950 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. तो ही एक्चुअली 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश कर दी, एंड उस पर ऑल्सो प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. An eclipse of the sun in 1990 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. So actually उन्होंने जो theory prove की sun से और eclipse से related, how like all of that, like how much time sun takes and how much like earth rotates, like rotations, revolution, इन सब के बारे, and the gravitational field, इन सब के बारे में जो scientific theory थी वो उन्होंने दी. and it was exactly like world को लगा कि ये इन theories से, ये जो new theories थी, and actually which he actually proved those theory. तो जब उनको पता चला कि इतनी न्यू थ्योरीज इवॉल्व हुई हैं, इट वॉज फेल्ट लाइक अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, मतलब जो एक क्रांति की तरह आया साइंस में. जो ये जो एरा था एल्बर्ट आइंस्टाइन का, ये एक रेवोल्यूशन की तरह था. साइंस को एक्चुअली इतनी इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो चुकी थी, एंड एक्चुअली पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड कि साइंस का एक्चुअली क्या महत्व होता है, क्या एक्चुअली वेटेज है लाइफ में. आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1920 में, और 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया. ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस. एक्चुअली सारे हिंदुस्तान की तरफ से, मतलब पूरे वर्ल्ड की तरफ से, नॉट ओनली लाइक इंडिया, अमेरिका और यूरोप, हर पूरे वर्ल्ड की तरफ से उनको ऑनर्स, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत और अप्रिसिएशन मिला. इन्विटेशंस भी बहुत आए, and press like the newspapers were loaded, like
और उनकी जो खबरें थी, उनके जो बारे में खबरें थी, उनके न्यू इन्वेंशन के बारे में जो भी टॉपिक्स एंड खबरें हुआ करती थी, वो हमेशा अखबारों में आ रही थी. When the Nazis came to power in Germany in 1933, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. जैसे ही नाजीज पावर में आए जर्मनी में, तो आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन ने एमिग्रेट किया कहाँ पर, जो जहाँ रह रहे थे वहाँ सर वो अब यूनाइटेड स्टेट्स यूएस चले गए. 5 years later the discovery of nuclear fission in Berlin and American physicists in an approach. तो जैसे ही वो वहाँ पे भी पहुँचे तो न्यूक्लियर फिशन जो बर्लिन में उन्होंने एक्चुअली उस पर काम किया, एंड इट ऑल्सो बिकेम अ वेरी फेमस वर्क बाय हिम. ये भी बहुत फेमस हुआ. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजिस कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम. सो देयर वाज आल्सो अ फियर, लाइक एक अजीब सा डर था उन लोगों के बीच में कि नाजीज आर गोइंग टू बिल्ड एन एटॉमिक बॉम्ब, लाइक नाजीज वर अटैकिंग पीपल, एंड उनका जो नेक्स्ट स्टेप था वो था कि वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने वाले, एक एटम बम बनाने वाले जो बहुत ही घातक साबित होने वाला था, एंड वो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था, डेंजरस चीज़ थी, जो एक्चुअली जो लोगों की जान ले सकता था. At the urging of colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. उन्होंने ये लिखा, लाइक द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त उन्होंने ये लेटर लिखा वार्न करने के लिए कि आपका एक सिंगल बॉम्ब एक पोर्ट को, एक जो समुद्री तट पोर्ट है, लाइक जहाँ पर जहाज़ वगैरह लाइक शिप पोर्ट वी कैन से, वहाँ पर वो पूरा तहस नहस कर सकता है, और आसपास की टेरिटरी को भी, मतलब आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बहुत नुकसान हो सकता है. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. So secretly what Americans did, American ने वार्निंग देने के बाद उन्होंने खुद अपना एक बॉम्ब बनाया, एंड विदाउट गिविंग एनी वार्निंग उन्होंने स्ट्रेट अवे जापानीज़ की जो दो बड़ी सिटीज़ थी हिरोशिमा एंड नागासाकी उन पे गिरा दिया. कब? अगस्त 1945 में, और पूरी तरीके से वो सिटीज़ तहस नहस हो गई, लाइक द सिटीज़ वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. आइंस्टाइन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. आइंस्टाइन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जितनी भी डिस्कवरी करना चाहते थे, जितने भी इन्वेंशन करना चाहते थे, वो इंसान की भलाई के लिए करना चाहते थे. वो एक भी इन्वेंशन, एक भी डिस्कवरी ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे लोगों को खतरा हो, लोगों की जान को खतरा हो, लाइक कोई भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए उनकी डिस्कवरीज, उनकी पावर्स का. दिस टाइम he wrote a public message to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. इसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक क्या कहते हैं पब्लिक में, पूरी जनता को इकट्ठा लेके सबके बारे में सोचते हुए उन्होंने एक प्रपोज़ल लिखा और बोला कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होना चाहिए. मतलब एक ऐसी सरकार, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन होना चाहिए जिसमें पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट साथ हो, लाइक एवरीवन फ्रॉम ईच पार्ट इज़ देयर, एंड हर कोई एक दूसरे के साथ काम कर सके और एक दूसरे के बारे में सोच के काम करे, अनलाइक के दूसरे एक दूसरे का हम लोग नुकसान करना स्टार्ट करते हैं. In it he proposed the formation of a world government. Unlike the letter of Roosevelt, this one made no impact. ठीक है, जैसा कि रूजवेल्ट के लेटर ने इतना इम्पैक्ट दिखाया, इतना सर इस लेटर ने इतना सर नहीं दिखाया. बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड आइंस्टाइन गोट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. मगर जब उनको ये असफलता हासिल हुई, लाइक उन्हें पता चला कि ये इससे कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने खुद डिसाइड किया एंड ही एक्चुअली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. उन्होंने खुद पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, agitating for an end to the armed build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. इन्होंने ये इसलिए किया ताकि वो चाहते थे कि उनका नाम है, उनका जो नाम है वो सिर्फ पीस, इंटीग्रिटी और डेवलपमेंट जैसी चीज़ों में यूज़ होना चाहिए, ना कि
building up like violence, building up like bombs and ऐसी चीज़ें बनाना जो एक इंसान के लिए ख़तरा हो सकती हैं। सो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं आर्म्स में काम नहीं करूँगा, मतलब बंदूकें वगैरह इस टाइप का कुछ भी नहीं बनाने में मैं हेल्प करने वाला हूँ जो इंसान के लिए ख़तरनाक हो। तो मैं अपना नाम, अपनी पॉपुलैरिटी सिर्फ उन कामों के लिए यूज़ करूँगा जो कि इंसान की भलाई में है, लाइक जो पीस की बात करें और जो डेमोक्रेसी की बात करें। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो जब 1955 में आइंस्टाइन जी का देहांत हुआ, तब एट द एज ऑफ 76 साल की उम्र पे वो उनकी डेथ हुई। ही वॉज, मगर आज भी उन्हें इसलिए नहीं लोग याद करते हैं कि वो सिर्फ एक साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट तो वो बहुत महान और बहुत बड़े जीनियस थे इस काम में, मगर वो एक विजनरी इंसान भी थे। लाइक विजनरी इंसान, जो इंसान आज की देख के नहीं चलता, आज से 10 साल 20 साल आगे तक की सोच के चलता है कि अगर सपोज लाइक वन एग्जाम्पल इज पीपल आर विजनरी इन द सेंस ऑफ बिल्डिंग ट्री, मतलब प्लांटिंग ट्रीज। जैसे हम लोग आज पेड़ लगा रहे हैं, हमको पता है कि ये 10 साल बाद बड़ा हो जाएगा, 15 साल बाद ये हमें फल भी देगा। लाइक तो आप कोई भी ट्रेड, तो दैट इज़ द विज़न। इंसान देख सकता है कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो आज से 5 साल बाद या कुछ साल बाद इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो इन्हीं चीज़ों को देख के ही आइंस्टाइन ने एक्चुअली आर्म्स वगैरह बनाना ही भी बंद कर दिया था एंड पीस एंड डेमोक्रेसी में साथ देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक वर्ल्ड इकोनॉमी, एक वर्ल्ड सोसाइटी एक अच्छे से तभी हो सकती है जब वहाँ पर पीस हो और डेमोक्रेसी हो। तो उनकी इन विचारधारा, उनकी एक विजनरी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से भी लोग उनको बहुत अच्छी तरह मानते हैं, समझते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं। एंड एक्चुअली देयर आर नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड पीपल who feel like him. He is a role model for those guys. So he had a wonderful life. I hope you must have learned a lot from his life as well and understood the chapter well. Thank you so much for watching the video.